السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بھر سے اردو زبان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمہ، تفسیر اور تجوید کے ساتھ سیکھنے کے خواہش مند مرد و خواتین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی اس کلاس کے اندر انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 110 سورۃ النصر کا لفظی ترجمہ اور چند تجویدی نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پہلے اس کی تلاوت اور اس کے بعد اس کا لفظ بلفظ ترجمہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آئیے ناظرین اکرام، اس کا لفظی ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ سورۃ النصر ہے، جس کو ہم اوپر لکھ دیتے ہیں سورۃ النصر۔ یہ ہے سورہ نمبر 110، آیت نمبر 1۔ اذا جو ہے یہ حرف شرط ہے، حرف شرط، جس طرح اردو میں کہتے ہیں جب یہ ہوا تو پھر یہ ہوا، جب یہ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اسی طرح سے اذا حرف شرط ہے عربی میں۔ اذا جاء یجیء، یہ جو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں یہ وہاں سے ہے۔ جاء یجیء یہ فعل ماضی ہے، جاء جب آ گیا یا آ چکا، جاء، اور یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر اور پھر اس میں غائب، واحد مذکر غائب کا جو ہے یہ صیغہ ہے۔ نصر اللہ، نصر، اسی لفظ کی وجہ سے اس سورہ کا نام جو ہے وہ نصر ہے۔ نصر جو ہے وہ مدد کو کہتے ہیں، عام طور پر یہ جو لفظ ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نصرت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مدد اور نصرت۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ چکی یا آ گئی اللہ کی مدد۔ والفتح، واو حرف عطف ہے، ہم اس کو پہلے بھی سیکھ چکے ہیں۔ الفتح، الفتح جو ہے یہ مصدر ہے، جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھولنا، چونکہ فتح کے ذریعے سے بھی انسان کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے یا نئی چیز ملتی ہے، تو اس لیے فتح کو بھی فتح کہتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کا لفظی ترجمہ، اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ جب اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے فتح جب یہ آ چکی یا مل چکی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کس طرح سے ہوئی اس کی مزید وضاحت اگلی آیت میں۔ وَرَأَيْتَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، واو یہ حرف عطف ہے۔ رأیت، رأیت جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تو دیکھا، تو نے دیکھا، اور آج را کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ جب یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور تو نے دیکھا یا تو نے دیکھا یا تو دیکھ رہا ہے الناس لوگوں کو۔ یدخلون، یدخلون، یدخلون جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ الدخول،
दाखला यदखुलु, दाखला इसका माजी है और यदखुलु इसका फ़ेल मुज़ारे है। यदखुलु वाहिद मुज़क्कर गायब, यदखुलानी इसका तस्नीया मुज़क्कर गायब, और यदखुलूना जो यहाँ पर मौजूद है ये है जमा मुज़क्कर गायब। और तूने देखा लोगों को यदखुलूना, यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं या दाखिल होंगे, ठीक है। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ जो फ़ेल मुज़ारे होता है उसके अंदर हाल के भी मानी पाए जाते हैं और उसके अंदर जो है वो इस्तिक़बाल या मुस्तक़बिल के माने भी उसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। वरअयत अन्नास यदखुलून, यदखुलून में आप ये चीज़ नोट कर लें, यदखुलून में भी दाल है, दाल, दाल जो है ये हरूफ़े क़लक़ला में से है अगर आपको याद हो तो। क़ुतुब जद्दीन 5 हरूफ़े क़लक़ला हैं, क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल। और हरूफ़े क़लक़ला के बारे में उसूल ये होते हैं कि 3 सूरतें होती हैं वहाँ पे क़लक़ला की। क़लक़ला कुबरा होता है, बड़ा क़लक़ला जब शद हो इनमें से किसी एक के ऊपर, और क़लक़ला वस्ता होता है दरमियान वाला जब इनमें से शद के बगैर कोई भी हरकत हो और वहाँ पर हम वक्फ कर रहे हैं तो दरमियान वाला क़लक़ला होता है। और जहाँ पर सिंपल जज्म हो तो वहाँ पर सबसे वीक क़लक़ला होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दाल के ऊपर सिंपल जज्म है तो यहाँ पर हम इसको हल्का सा हिलाएंगे और वीक क़लक़ला करेंगे। यदखुलून, यदखुलून, वरअयत अन्नास यदखुलून, और तूने देखा, जो तू देखता है लोगों को, यदखुलून वो दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाह, फी क्या है नाज़रीन इकराम, ये हर्फ़ जर है जैसा कि हम कई दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं। 17 हरूफ़ जर हैं उनमें से एक फी है। फी का मतलब होता है में। तो देख रहा है लोगों को कि वो दाखिल हो रहे हैं फी, इस चीज़ में दाखिल हो रहे हैं दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में। अल्लाह का दीन जो है ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, दीन मुज़ाफ है, लफ्ज़ अल्लाह यहाँ पे मुज़ाफ इलैह है। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह का तर्जुमा जो है वो किससे होता है, का के की से होता है। अल्लाह का दीन, ठीक है, जैसे अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, किताब खालिदीन खालिद की किताब। तो इस तरह की जो निस्बत होती है जिसमें एक चीज़ को दूसरे की तरफ मंसूब किया जा रहा होता है तो उसको मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि अल्लाह के दीन में लोग क्या हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं अफवाजा, अफवाजा फौज दर फौज, फौज की जमा है अफवाजा, ये फौज की जमा है। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और तो देख रहा है लोगों को कि वो अल्लाह के दीन के अंदर फौज दर फौज या जोख दर जोख जो है वो दाखिल हो रही है। फसब्बिह, आखिरी आयत, फसब्बिह, फा जो है ये नतीजे की है या जजा की समझ है। इज़ा शर्त था तो उसकी जजा ये आ रही है कि जब अल्लाह की मदद आ चुकी है तो आप क्या करें, फसब्बिह, आप तस्बीह करें, तस्बीह पढ़ें या तस्बीह करें, अल्लाह की पाकी बयान करें। सब्बिह जो है ये फ़ेल अमर है, फ़ेल अमर है और ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है तस्बीह। इसका असल में जो मस्दर है वो बाब तफ़ईल से है, बाब तफ़ईल। सलासी मज़ीद फ़ी के जो है वो 14 अबवाब हैं, उनमें से जो है वो 9 बे हमज़ा वसल के हैं और 5 जो हैं वो हमज़ा फ़तई के हैं। उनमें से एक बाब तफ़ईल है, तफ़ईल के वज़न पर है तस्बीह, वहाँ से ये फ़ेल अमर का सीगा है फसब्बिह बिहम्दि। बा इसमें देख रहे हैं आप हर्फ जर है, हम्दी अलग है, हम्द का मतलब तारीफ होता है। रब्बिक, रब्बिक, बस आप तस्बीह करें अपने रब की तारीफ के साथ। हम्द का मतलब तारीफ है, रब्बिक, हम्दी मुज़ाफ है, रब्बी मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ है, और काफ जो है ये इसमें ज़मीर है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये ज़मीर कौन सी है, ज़मीर मजरूर ब इज़ाफ़त। अब अपने रब की तस्बीह बयान करें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, बिहम्दि रब्बिक,
आप इसमें देख रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ इसको रब्बिक, रा को मैं पुर पढ़ रहा हूँ, हैवी पढ़ रहा हूँ, यानी मोटा पढ़ रहा हूँ। और रा के बारे में यही उसूल है कि जब इसके ऊपर जबर या पेश होती है तो उसको मोटा पढ़ा जाता है। अगर ये साकिन हो तो इससे पहले वाले हर्फ को देखा जाता है, अगर इससे पहले वाले हर्फ पे जबर या पेश हो तो उसको मोटा पढ़ेंगे उस रा को। लेकिन अगर इसके ऊपर जेर हो या ये साकिन हो और इससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो, उस सूरत में इसको बारीक पढ़ा जाता है। तो इसको पढ़ेंगे फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, वस्तगफिर ये है वस्तगफिर, वाव आतिफा, ये हर्फ अतफ है। इस्तगफिर जो है ये फेल अमर है, जिस तरह सब्बिह है इसी तरह से ये भी फेल अमर है कि आप तस्बीह करें और इस्तिगफार करें। ये इसका जो मसदर है वो बाब इस्तिफाल से है, अल इस्तिगफार। जो बाब इस्तिफाल होता है उसकी खासियत ये होती है कि उसके अंदर जो सीन होती है ये तलब की होती है, कि इस्तिगफार का मतलब है मगफिरत मांगना। वस्तगफिर हु, जो हु की ज़मीर है ये मफऊल की ज़मीर है। हु से मुराद हु ज़मीर होती है, ज़मीर हमेशा किसी चीज़ की तरफ लौट रही होती है और यहाँ का मर्जे जो है वो अल्लाह है कि आप अल्लाह की तरफ तवज्जो फरमाएं। वस्तगफिर फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। और इस आयत का आखिरी हिस्सा क्या है? इन्नहु कान तव्वाबा। इन्ना, इन्ना जो है इसको कहते हैं हर्फे मुशब्बा बिल फेल, हर्फे मुशब्बा बिल फेल। ये इन्ना, अन्ना का अन्ना, लईता, लाकिन, लअल्ला, ये 6 को कहते हैं हर्फे मुशब्बा बिल फेल, यानी फेल के मुशाबे जो हरूफ होते हैं। जिस तरह फेल को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ़ाइल की और मफ़ऊल की, इसी तरह जो हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल होते हैं इनको भी 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस्म की होती है और ख़बर की होती है। इन्नहु कान तव्वाबा, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है और जो हु ज़मीर है ये इसका अगेन जो मर्जे है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात है। इन्नहु काना, काना जो है ये फ़ेल नाक़िस है। फ़ेल नाक़िस को जो है वो इस्म और ख़बर की ज़रूरत होती है, जैसा कि हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल को होती है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो इन्ना होता है, हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल होता है, उसका इस्म के ऊपर हमेशा नस्ब आता है और उसकी ख़बर हमेशा मरफ़ू होती है। और काना में इसका उलट होता है, इसमें इसका इस्म मरफ़ू होता है और उसकी ख़बर जो है मंसूब होती है। ये देखिए काना, काना फ़ेल नाक़िस है और इसके अंदर हुआ ज़मीर है, हुआ वो इसका इस्म है। और तव्वाबा, तव्वाबा ये तौबा के मसदर से ये इसमें मुबालगा है, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाले को कहते हैं तव्वाब, और वो यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात है। तो इस तरह से नाज़रीन इकराम ये फ़कत 3 आयत मुबारक हैं इस सूरह की और इनका लफ्ज़ी तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया गया। जल्द ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाजिर होंगे सूरह नसर की तफसीर के कुछ नकात के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त। वस्सलाम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।